Thank you. Good morning, Deepati. Good morning, ma'am. Good Hi, morning. very good morning. Everyone, Morning. very Were we happy good listening to morning. Bharti's experience? Yes, ma'am, it was I good. Sharing It was Bharti, excellent. I wasn't sitting here in front of the morning. system, but I could hear it in the background. Thank you. Thanks to you. So very good morning to everyone who are logged in here live and to everyone who are listening to us on the YouTube. For you guys, for people who are on the YouTube, we love you. And good morning, good afternoon, good evening, at whatever time you're listening to us. So Bharti, would we start with something from you? You wanted to share something? Huh? It was just I was sharing about the magnificent outcome. Acha. Like yesterday, I had for my workshop, and I met the principal who was actually I was not knowing, but he was my B.Ed college friend. He did B.Ed with me, तो वो इतना special VIP treatment दिया उसने. And the session I was taking about teaching skills and classroom management. बट वो हर स्लाइड पे मतलब कई बार तो मुझे लगा ज्यादा हो रहा है बट नहीं वो द मैजिक ही आ रहा था हर स्लाइड पे दिमाग से वही निकल रहा था वो होता है ना जब मैजिक flows to me and through me to wherever I am. Exactly. So I shared the link again, the entire staff. There were more than 150. And I tell them to try to join. So they were like, problematic child ko kaise karna, ye kaise karna, wo kaise karna. So at the end, they gave a conclusion ki it is like about changing only your own minds. मैंने कहा बस यही. Change yourself and the things around you will change. Yeah, that is the whole funda behind living a life, that apne dimag mein seed dal do that everything is so perfect and everything that happens is beyond my expectations. Everything is always working out for me. Wherever I go, I see success. My income is increasing constantly. So these are all called auto suggestions. So our life is what our auto suggestions are. I mean, this one thing, because auto suggestion dimag mein, inadvertently, without control, involuntarily, bahut negative chal rahe hote hain. So that is what we need to change and reprogram. And subconscious ko to pata nahi hota what's true, what's false, kya sahi hai, kya galat hai, kya mumkin hai, kya nahi hai. वो तो बस जैसे ही आपने बोला और वो command मान लेता है. And then once that command gets repeated, so we are constantly recreating it. So repetition is recreation. So keep repeating the things that you want to see in your life. And ma'am, even I just decided the time कि हाँ इतने बजे तक तो मुझे मेरा 9 बजे सेशन है रात को, तो मुझे 8 o'clock वापस आना है. और हम सुबह रास्ता भूल गए और हम 2 घंटे के रूट को 4.5 घंटे में पहुंचे क्योंकि रात को हमको 8 बजे रिटर्न आना था. तो एग्जैक्ट 8 o'clock is the time. But it was good. Yeah, chalo, great, congratulations, and may you get more and more success and power and more opportunities to transform lives also. So today is everybody's favorite chapter, day 8, the magic ingredient. So कौन सा ingredient खाने में अगर हम rice बना रहे हैं तो हम राइस डालते हैं, पानी डालते हैं, कई लोग उसमें घी डालते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं, शायद वो भी कभी कभी सिर्फ वाटर एंड राइस से हम प्रेशर कुकर में. तो अब वो कौन सा जादू इंग्रेडिएंट है जो हमको उस खाने में डालना जरूरी है, इज ग्रैटिट्यूड. सो जब अब खाना और पानी तो हमारी लाइफ बनाता है ना. सो खाने और पानी में सोचो कि मैजिक इंग्रेडिएंट ऑलरेडी प्री मिक्स्ड है. सो वो प्री मिक्स मैजिक इंग्रेडिएंट के साथ जब हम खा रहे होते हैं या कोई भी बेवरेज पी रहे होते हैं, चाहे वो हेल्दी या अनहेल्दी है, that really doesn't matter. Slowly our life will start changing और आप उसमें difference देखोगे. So इसमें we'll just go to the image, see what's in here. So there is a beverage जो रखा हुआ है टेबल पर और उसमें एक stirrer है और एक सैंडविच is on the left side of it. So इसका और इसमें खूब सारा ग्रैटिट्यूड का डस्ट नजर आ रहा है. जहां पे भी गोल्डन स्पार्कल्स होते हैं वहां ग्रैटिट्यूड होता है. तो उस स्टरर से आपको पीने के पहले या खाने के पहले उसमें बहुत सारा थैंक यू डालना है और उसको मिक्स करना है अपने बेवरेज में. स्टरर का मतलब होता है मिक्स करना और फिर उसको कंज्यूम करना है.
फिर आप देखना कि आपकी जिंदगी कितनी सुंदर होती जाएगी। मैंने इतने सारे लोगों को प्रोस्पेरिटी लाते हुए देखा है ये वाली प्रैक्टिस करके, रोज बोल बोल के, जितनी बार वो खा रहे हैं, जितनी बार भी वो पानी पी रहे हैं, that my income is increasing and money is pouring into my life, money is raining into my life. मैंने health revolutions देखे हैं लोगों के बोल बोल के। I mean like तेजल ही हम में से है, she is an example जिसने health revolution लेके आई है वो अपने लाइफ में मैजिक इंग्रेडिएंट प्रैक्टिस से। जितनी बार वो खाती थी, क्योंकि उसके ब्लड शुगर का HbA1c लेवल 11 पॉइंट समथिंग आया था, जो हाईली डायबिटिक होता है ना, 11 पॉइंट समथिंग HbA1c। सो उससे वो 5.2 लेके आ गई है मैजिक इंग्रेडिएंट करके, और 108 की माला जप के। सो 108 की माला होती है जो हम इंडियन कल्चर्स में यूज करते हैं। तो वो रोज ये कर, मैजिक इंग्रेडिएंट तो खैर पूरे दिन खाते पीते रहते हैं, पानी हम बहुत ज्यादा पीते हैं, तो वो तो करती थी थैंक यू फॉर माय परफेक्ट लेवल ऑफ शुगर, ब्लड शुगर, ठीक है, ये तो वो करती थी। और वो 108 की जो माला होती है उसमें 108 बार थैंक यू फॉर माय परफेक्ट ब्लड शुगर लेवल, थैंक यू, वो कर करके उसने अपना HbA1c बिना दवा के, बिना इंसुलिन इंजेक्शंस के, बिना किसी चीज के 11 पॉइंट समथिंग से 5.2 लेके आ गई है मैजिक इंग्रेडिएंट, और वो 108 की माला कर करके। ऑफ कोर्स वो बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई है तेजल, ग्रैटिट्यूड इवनिंग सेशंस अटेंड कर रही है शायद वो, कभी कभी मॉर्निंग करती है। और दिस इज हाउ, मतलब इतना ग्रैटिट्यूड उसकी जिंदगी में इनग्रेन्ड है दैट उसने वो उसका एक खेत है लाइक अ पीस ऑफ फार्म इन गुजरात, वेयर वेयर शी शेयर्ड दैट बहुत बारिश के कारण सारे आम की खेती करते हैं वो लोग, और मतलब उस सीजन में तो सारे सबके पेड़ बर्बाद हो गए थे फ्लड में, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। सिर्फ उसके फार्म पे 5 लाख आम उगे थे, जो एक नामुमकिन, इट वाज लाइक एन इम्पॉसिबल रियलिटी दैट हैड कम ट्रू ग्रैटिट्यूड कर करके। सेम बारिश उसके फार्म पे भी हुई थी, तो कहीं पे भी आम की फसल नहीं हुई, बट इन हर फील्ड, इन हर फार्म शी प्रोड्यूस्ड 5 लाख मैंगोज, which was a record that time, I mean which was recent, जब अभी आम का सीजन आया था। and how her prosperity has grown so much and all of that. So gratitude से ऐसे ऐसे revolutions होते हैं, और एक एक 1.5 साल में इतना फर्क आ जाता है। वही लड़की जो कभी घर के भी बाहर नहीं निकल पाती थी क्योंकि उसको कुछ मेजर प्रॉब्लम थी, एपिलेप्टिक फिट्स आते थे, और वो हर मतलब एक दिन में 20-20 ऐसे फिट्स आना, वहां से मतलब अब वो अभी गोवा घूमने गई थी, और वो कहीं अकेले भी चली जाती है ट्रैवल करने के लिए। मतलब ऐसी सक्सेस स्टोरीज अगर हम ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं तो हमारी जिंदगी में आती रहेगी। और जो भी आपका इशू चल रहा है लाइफ का, रिलेशनशिप है, पैसा है, करियर है, जो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा घर में लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, तो अगर ये सब होता है तो मैजिक इंग्रेडिएंट प्रैक्टिसेस फॉर यू। और इसको आप खाते पीते बोलो थैंक यू दैट मेरा घर इज लाइक अ टेम्पल, एवरीबॉडी लिव्स इन पीस, लव एंड हार्मनी। ओके, ये कह के खाना खाओ, ये कह के पानी पियो, आप देखना कि आपका घर एक्चुअली विल बिकम लाइक अ टेम्पल, एंड विच इज एन एपिटोम ऑफ लव, पीस एंड हार्मनी। ओके, हेल्थ या जो भी है हम पढ़ते हैं। मोहित जी आप पढ़ रहे हैं शायद आज, है ना? नहीं, I think Thursday today. Sorry. हाँ जी, मोहित जी पढ़ रहे हैं। Okay, sorry. Day 8, the magic ingredient. Quote: A thankful heart with a continual, a thankful heart hath a continual feast. W.J. Cameron, 1879 to 1953, journalist and businessman. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase
the magic in your life exponentially. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year around. Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to store, to restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. Quote, if there is magic on this planet, it is contained in water. Unquote. Lauren Isley, 1907 to 1977, anthropologist and natural science writer. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gifts of food and water. Say the simple magic words thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impacts the world supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of food and water for everyone on the planet. In addition,
Your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavor seems to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a moment to look at what you're about to eat and drink, and in your mind or out loud say the magic words thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I am sprinkling them with magic dust, and I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything that I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot. Visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. Magic practice number 8, the magic ingredient. Point number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look
at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Point number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Mohitji. I just noticed it is 5th of October, so you read every 5th. Yeah, thank you so much. So this particular chapter is like a very, very powerful practice. इसमें रोज हमको रीना याद भी दिलाती है ना कि सारे जो ग्रोअर्स हैं, दैट इज ऑल द फार्मर्स, उनको थैंक यू बोलना खाना खाते वक्त, मतलब हमको इतनी जल्दी होती है खाना खाने की, वी वांट टू गॉबल इट डाउन। खाना जब लेके हम जैसे ही रखते हैं अपनी टेबल पे या खाना हमारे सामने आता है, हमको कम से कम मिनिमम 10 सेकेंड्स उसके पहले लगाने। ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ में, ऑब्जर्वर इफेक्ट मतलब देख के खाने को, अगर आपके खाने में देयर इज सम राइस, देयर इज सम दाल, देयर इज सम वेजिटेबल एंड सम सैलेड एज एन एग्जांपल, और इवन इफ यू हैव पिज्जा, ओके, सो व्हाटएवर इट इज जो आप खा रहे हैं, मिनिमम 10 सेकेंड्स के लिए खाने को देखकर, ऑब्जर्वर इफेक्ट से चेंज आता है, ये मत भूलना। सो इट्स नॉट जस्ट सेइंग थैंक यू, इट्स देख के थैंक यू बोलना, एंड देन उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है खाने का, और उसको, और उसमें आप तब कुछ भी थैंक यू, आई लव यू भी बोल सकते हो आप। थैंक यू टू ऑल द फार्मर्स जिन्होंने क्रॉप्स ग्रो किए, जिनकी वजह से खाना हमारे टेबल पे आता है। यू कुड से थैंक यू, अगर आप चिकन खा रहे हो या एग खा रहे हो, तो जितने भी मीट ग्रोअर्स हैं, मतलब वो इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, उनको थैंक यू बोलना। Yeah, and to all the people who are transporters. So it is the farmers, packers, transporters, and the sellers. ये 4 लोग involved होते हैं in bringing food on our plate, है ना? And of course, there's a 5th one for some of us. They're cooks also. If you are not cooking the food yourself, so then जो cook हैं आपके घर में, उनको भी थैंक यू बोल के फिर 5 लोग हो जाएंगे जिनको आपको थैंक यू बोलना होगा, और फिर उस खाने को थैंक यू बोलना होगा दैट इट इज गोइंग इनसाइड एंड नरिशिंग। अगर आपके लाइफ में कोई ब्रेक डाउन मोमेंट्स चल रहे हैं, सपोज दैट फेज वेयर you're not healthy and you want the best of health, so आप खाने को और पानी को जितनी बार भी कंज्यूम करो, you can just say that thank you for my perfect health, thank you that my body is recovering and healing so fast। देख के बोलना है कि मेरी सेहत बहुत अच्छी होती जा रही है और मैं बहुत जल्दी से ठीक और अच्छा फील करती जा रही हूँ, और आप देखोगे कि वो इफेक्ट आने लग जाएगा। बिकॉज खाने में, पानी में एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। मैंने आज एक स्लाइड खोली हुई है जो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी इसके बाद, ठीक है? जो मसारो मोतो जो थे जापानीज साइंटिस्ट, उन्होंने पानी के स्ट्रक्चर को हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था, और खाने को अलग अलग, मतलब पानी को अलग अलग शब्द बोले थे। एक में बोला था आई लव यू, एक में बोला था आई ब्लेस यू, एक को बोला था आई हेट यू, और इस तरह से कुछ 9 डिफरेंट चीजें बोली थी पानी को, ठीक है? तो वो 9 डिफरेंट शेप्स आ गए थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। जब आई लव यू बोला था तो पानी का एक बहुत सुंदर सा फ्लावर बन गया था, तो इस तरह से अलग अलग, लाइक, और आई हेट यू एंड यू आर डिस्गस्टिंग, ऐसा भी बोला था उन्होंने, और फिर उसका शेप देखा तो ऐसे गार्बल्ड, लाइक बिल्कुल ऐसे मिक्स अप गंदा सा कुछ शेप हो गया था। एंड वाटर ऑल्सो बिकेम ब्लैक इन कलर। सो जब हमने अपने सेशंस करने शुरू किए थे मैजिक बुक के, तो हमको ये एक्सपेरिमेंट करना था, राइस एक्सपेरिमेंट। तो हमने कुक्ड राइस लिया था, ऑब्वियसली कुक्ड राइस जो पानी के साथ हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं, और हमको 3 मतलब जार्स लेने थे, ट्रांसपेरेंट जार्स, और ये वाला जो कुक्ड राइस था इसको 1/4 भर के हमने तीनों जार्स में रखा था, और एक के ऊपर हमने एक लेबल चिपकाया था जिसपे लिखा हुआ था लव, दूसरे पे इग्नोर, और थर्ड पे हेट।
और ये तीनों जार्स को हमने अलग अलग जगह रखा था, और 10 डेज के बाद, और उसको खोल के हमको बोलना भी होता था। लव वाले जार पे आई लव यू, एक पे इग्नोर यू, आई हेट यू। और जो हमारा आई लव यू वाला जार था वो 2 हफ्ते के बाद भी नहीं खराब हुआ। इट वॉज स्टिल वाइट राइस, स्टिल फ्रेश, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी थी, जैसे वो फ्रेश बना हुआ हो। और जो दूसरा वाला राइस था इग्नोर, उसमें ब्लैक ब्लैक फंगस आ गई थी, बीच बीच में ट्रेसेस। और जो आई हेट यू वाला जो जार था वो पूरा फंगस से ब्लैक इन कलर, इट वाज स्टिंकिंग सो बैड कि उसको डब्बे के साथ ही फेंकना पड़ा था। ठीक है, सो इसका मतलब है कि क्वांटम लेवल पे एनर्जेटिक, क्वांटम लेवल मतलब सबसे सूक्ष्म लेवल पे एनर्जी हर चीज में होती है, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। एक पेड़ के पास एनर्जी है, जो टेबल है उसकी एनर्जी है, आपके कार की एनर्जी, आपके कार के स्टेयरिंग व्हील की एनर्जी होती है। सो इस तरह फूड में बहुत मोबाइल और बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, लेकिन वो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और वो पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव इफ यू आर सेइंग वेरी नाइस थिंग्स टू द वाटर एंड फूड। नेगेटिव वो होगी अगर आप कोई क्राइम पेट्रोल देख रहे हो टीवी के ऊपर। Okay, so I don't want to get into trouble by naming the serials and movies, but अगर आप कोई भी ऐसी चीज देख रहे हो that जो with not pleasant, जिसमें violence, hatred, abusive language, sex, ये सब है, मतलब in a very negative way, वो सारी एनर्जी उस वक्त आपके खाने में जा रही है। ठीक है, जो भी वहां पे हो रहा है। अब आपकी जिंदगी में सस्पिशन, फियर, वरी, प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, बिकॉज खाना खाते वक्त यू वर वॉचिंग ऑल दोज थिंग्स दैट वर नॉट दैट प्लेजेंट, and in fact opposite to the pleasant. So all those things that you're watching on the television and you were eating your food at that point of time, now that is going to go into your life. आपकी जिंदगी वैसी हो जाएगी जैसे आपने टीवी पे देखा है ना, क्योंकि खाने और पानी ने सारे एब्जॉर्ब कर लिया था। और तो इसीलिए हम खाते और पीते वक्त कोई भी ऐसी चीज देखते नहीं है। सपोज आप लोगों के घर में टीवी चल रहा होता है और न्यूज चल रही होती है, बहुत न्यूज का ऑब्सेशन होता है। टीआरपी के लिए न्यूज में नॉट बी दैट ग्रेट। ओके, सो द न्यूज इज दैट वहां एक्सीडेंट हो गया, वहां पे ये हो गया, एक फ्लाइट क्रैश हो गई है, ये हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है। अब वो सारी इंफॉर्मेशन आपके खाने में जा रही है और खाने में यू आर कंज्यूमिंग दैट, सो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। जो भी आप देखते हो अपने घर में खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त, वो सारी इंफॉर्मेशन जाती है। इसीलिए कई लोग पानी हमेशा अपने साथ अपना खुद का लेके जाते हैं। दे डोंट कंज्यूम द वाटर फ्रॉम एनीवेयर एल्स, only because of this reason that water has such a powerful memory. So it's always better that you have your own water. एंड जो आपकी वाटर बॉटल है, लाइक मेरे साथ अगर ऑफिस में भी हमारे हर डेस्क पे लाइक टेबल पे 1 लीटर की बॉटल पहले से ही रखी होती है, इवन बिफोर आई एंटर द ऑफिस। So I open that bottle, ढक्कन खोल के, and I always charge that water by saying thank you so much and making my day super productive at work, my health so good, and thank you for nourishing my body and making me so healthy. Okay, so sometimes what I do is that I just write love, peace and happiness on a small slip of paper. एक छोटे पेपर पे मैं लिख देती हूँ लव, पीस और हैप्पीनेस, और पानी को भी खोल के बोलती हूँ कभी कभी लव, पीस, हैप्पीनेस, और वो पर्ची जो छोटी सी होती है उसको अपनी बॉटल के नीचे रख देती हूँ। सो ये भी प्रैक्टिस बहुत पावरफुल होती है, जब हम पहले से ही करते आ रहे हैं बहुत सालों से ये वाला, कि हम पर्ची लगा देते हैं उसके नीचे, पानी के नीचे। इतने मिरेकल्स होते हैं। जब मुझे कोविड हुआ था तो मैंने वाटर टेक्निक से अपने आप को ठीक किया था। दैट बहुत आई थिंक 4 days में आई वाज बैक टू नॉर्मल। और वो भी उस टाइम जब मतलब सबसे फेटल कोविड चल रहा था ना, दैट पीक पे 30th अप्रैल को मुझे हुआ था। And 4th I was back to normal. 7th को I started running my 5 kilometers and 15,000 steps walk करती थी और 5 kilometer run करती थी। तो ये मेरा workout and some yoga asanas that I would do that time. So वो मैंने 7th को सब कुछ शुरू, 30th अप्रैल को I was diagnosed with COVID, जब मुझे high fever और वो सब हो गया था। And 7th I was back to my normal because of magic ingredient practice.
क्योंकि पानी बहुत पीना होता है कोविड में ना, मतलब मिनिमम 7 लीटर्स कंज्यूम करने होते हैं, तब जाके आपकी बॉडी फाइट कर पाती है. So I was drinking that much water, and every time I would charge it with very powerful words, that thank you for penetrating into each and every cell of my, ऐसे बोलती थी उस टाइम में, क्योंकि जल्दी तबीयत ठीक करनी थी. Thank you for penetrating into each cell of my body and recovering and reviving me and making them so alive and so revived and refreshed that I'm feeling so good about my health. And thank you, universe, for giving me such an amazing recovery. And I did get an amazing recovery, 4 days COVID, and it was all over. And jo strength meri pehle thi usse bhi zyada meri ho gayi thi after the COVID. So I was blessing COVID so much. In fact, another thing I did is I also spoke to the virus in my body, which I told you. I spoke to the virus in my body. I said, jab 3 din ho gaye the, so I said that, COVID virus, I know that, like you had come to maybe teach me a lesson, or maybe मैं mask नहीं पहनती थी बिल्कुल भी. So you've come because I was so casual. I would never wear a mask even when I went out. So this is the reason you've come. So I've learned my lesson, and you can please leave my body right now. And thank you so much for giving me this compulsory rest, and also making me believe and giving me the power of gratitude practices. And I think उसके बाद से मुझे कभी हुआ नहीं, कोविड वायरस चला ही गया था मेरी बॉडी से. So जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी में आता है, I always talk to it and I say that I think it's time for you to say goodbye to me, and you can go back, and go back and not go to anyone else's body. So आप अपने वायरसेस और बैक्टीरिया को भी ब्लेस कर सकते हो. ठीक है, वो अब मतलब जो भी है, हमारी इम्यूनिटी तो बिल्ड करने आए ना, तब तक तो मतलब ऐसा वो भी नहीं हुआ था कि दूसरा वाला वैक्सीनेशन नहीं आया था, तब तक एक ही वैक्सीनेशन था. और बिकॉज मैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर हूँ, तो मुझे हेल्थ केयर के अंडर में सबसे पहला वैक्सीनेशन लगा था. और मुझे पास भी पूरा वो मिल गया था. सो आई वाज मूविंग अराउंड आल्सो अ लॉट, बिकॉज मुझे हेल्थ केयर का वो जो पास मिलता है ना, विच ओनली द डॉक्टर्स गॉट, तो वो हेल्थ केयर का पास भी मिला हुआ था, और ये भी मिला हुआ था मुझे. एक वैक्सीन भी मिल गया था जो सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ही मिल रहा था. So that way, so everything became so easy. अभी भी जब आंखों का चश्मा जो था, because मेरे आंखों का नंबर बढ़ता जा रहा था, and then I was finding it like difficult and challenging to read. And that I've taken in heredity, like आंखों का. So I got off my reading glasses by magic ingredient practice. So these are the practices I've done every day when I was eat and drink. I would say first water जो मैं सुबह सुबह पीती हूँ, जो आरओ से निकाल देती हूँ, उसमें सबसे पहले I would say thank you for my perfect vision that I can read even the small words and sentences with ease. Okay, so this is what I would say to the water, and then drink it. So uski wajah se I saw there was such a monumental shift, and within 6 months, I saw that I didn't need specs, okay, to read. I did not need in these sessions also. I never sat in the beginning. People who were there with me in 2020, May, June, July, know that I would never be able to sit in front of the laptop without my reading glasses. Okay, now I don't need them. Everything's crystal clear. अब छोटे जो मैं बोलती थी ना, I can read small sentences also. ठीक है, so जिन लोगों का आपका relationship issue चल रहा है, thank you for my perfect relationship. And this you have to tell the food and water. और आप देखना कि कितना huge shift आपकी life में आने लग जाएगा. ठीक है, अगर पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है तो आप बोल सकते हो थैंक यू यूनिवर्स दैट माय इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंड द अमाउंट ऑफ मनी कमिंग टू मी इज एक्सीडिंग इवन माय एक्सपेक्टेशंस एंड आई रियली लव यू एंड थैंक यू. So when you talk like this, you will see, because see, this food and water is only making up your life, no? हमारा brain, nervous system, हम बार बार बोलते हैं nervous system की firing, nerves की firing, या brain या mind, ये सब पानी से ही तो चल रहा है. Brain is 85% water, by the way, and water की 100% memory होती है. तो अब ये जो पानी आप पी रहे हो वो आपका पूरा ही बॉडी बना रहा है ना, ब्लड बना रहा है. ब्लड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स फ्लो होते हैं, चार्ज होता है. जितनी भी लिक्विड चीजें हैं वो बहुत बहुत ज्यादा चार्ज होती है, उनमें बहुत मोबाइल एटम्स होते हैं.
तो एनर्जेटिक लेवल पे उसमें बहुत फायरिंग हो रही होती है। सो ब्लड तो पूरा ही पानी होता है, ऊपर से ब्रेन 85% वाटर है। तो आप सोचो कि सारी नर्वस सिस्टम की वायरिंग फायरिंग जो हो रही है, नर्वस सिस्टम की वजह से ही तो हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे इर्द गिर्द है, दैट इज बिकॉज हमारी नर्व्स, दैट्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो पूरी बॉडी में है, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन से ही फ्लो होते हैं मैसेजेस। जैसे अगर आपको कोई पैर में पिंच करता है बहुत जोर से, या आपको कोई कांटा चुभ जाता है, सो यू फील दैट थिंग, नो, लाइक वो कांटा चुभने का सेंसेशन। सो वो कैसे होता है? कांटा तो पैर में चुभा है, तो आपकी जो नर्व्स है जो पैर में है, वो सिग्नल लेके गई आपके ब्रेन के पास, और ब्रेन ने कहा आउच, या ब्रेन ने कहा कि हटा लो, या आपको दर्द का सेंसेशन हुआ, तो वो सिग्नल ब्रेन से आया, तो इतनी जल्दी ऊपर मैसेज गया और वापस आया। ये कंडक्शन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन होता है नर्व्स में, है ना। और पानी इनको प्रोबेबल मतलब पानी से ही ये एक्चुअलाइज होते हैं। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 72% हमारी ह्यूमन बॉडी पानी होती है, हमारे मसल्स, बहुत बहुत हर जगह पानी से ही काम चलता है, पानी से ही मेटाबॉलिज्म होता है। जो आप खाना खाते हो वो जाके आपके बॉडी के सेल्स बनाता है, हर सेल की शेल्फ लाइफ होती है, वो उसके बाद मर जाते हैं, है ना। जैसे लिवर है, 1 महीने के बाद सारे सेल मर जाते हैं और नए सेल बनते हैं, और नए सेल बन रहे हैं जो आपने खाना खाया और जो आपने पानी पिया उसकी मदद से। तो इसका मतलब है द फूड एंड वाटर बिकम्स यू, इट बिकम्स योर बॉडी, इट बिकम्स योर ब्रेन, इट बिकम्स योर आईज, इट बिकम्स द वाटर इन द आईज, इट बिकम्स, इट्स हीलिंग योर रेटिना, इट इज हीलिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज हीलिंग hemorrhages जो अंदर हो रहे होते हैं, isn't it? Everything happens in the medium of water. So today is the day and onwards that we will really saturate gratitude into the water and the food that we have. And we have to do this if we really want an amazing life, because we are all about food and water. It is as simple as that. So जब हम ऐसे करते हैं तो सारे जो 4-5 लोग हैं जो पीछे से आ रहे हैं, फार्मर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, फिर सारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, पैकर्स जो थे, है ना, बंडल बना के रखते हैं, जैसे गेहूं ग्रो हुआ, व्हीट हुआ, उसको बंडल अप करना, उसको लोड करना। सो पैकर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सेलर्स, मार्केट में जो रिटेल जो सब्जी लेके बैठे होते हैं, कभी कभी रोड के साइड में, कभी स्टोर्स में, तो वो सारे सेलर्स एंड द कुक्स इन योर हाउस। So you have to say thank you to them before आप पहली बाइट मुंह में डालो, उसके पहले 10 सेकेंड लगता है वाटर को अपना सिस्टम चेंज करने में, है ना, या फूड को अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करने में। तो 10 सेकेंड मिनिमम, 10 सेकेंड बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। सो 10 सेकेंड ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ खाने पानी को थैंक यू बोलो, इन सारे लोगों को थैंक यू बोलो, और उसके बाद कंज्यूम करो। वैसे ये आदत बचपन से थी, स्कूल में तो हम करते थे, फिर बीच में बड़े होके सब कुछ भूल गए, और लेकिन अब हम कर सकते हैं। तो आपका सारा पानी अमृत बन जाएगा और आपका सारा खाना प्रसाद बन जाएगा। सो प्रसाद और अमृत को कंज्यूम करना है हमको, खाने और पानी को नहीं, ठीक है। और इसकी वजह से जब थैंक यू हम खाने को बोलेंगे, तो रोंडा बर्न ने इतनी ब्यूटीफुली समझाया है कि पूरी दुनिया का मास प्रोडक्शन खाने का बढ़ेगा, कहीं पे भी पानी की कमी नहीं होगी, सूखा नहीं पड़ेगा, नदियां भरी रहेंगी, बारिश वहां पे अच्छी होगी, बिकॉज खाने और पानी को थैंक यू बोल रहे हैं। और हमको ये भी, फूड एंड वाटर इज ऑल्सो सिग्निफाइंग मदर अर्थ एंड द एलिमेंट ऑफ वाटर। तो जो 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम भगवान बोलते हैं, उनमें से 2 ये हैं। तो जैसे ही आपने खाने को थैंक यू बोला, आपने मदर अर्थ को वैसे ही थैंक यू बोल दिया, तो आप बहुत बड़ा पूजा, इट्स अ वेरी बिग काइंड ऑफ अ प्रेयर, है ना, मदर अर्थ को थैंक यू बोलना। क्यों खाने को थैंक यू, तो खाना तो वहीं से आ रहा है। और पानी ऑफ कोर्स इज अमृत जल पिता बोलते हैं, है ना, धरती माता और अमृत जल पिता, है ना, पुराणों में तो ऐसे ही बोलते थे। तो इस तरह से आप माता पिता, जो हायर वर्जन ऑफ द माता पिता है, हम उनको भी थैंक यू बोल रहे हैं, धरती माँ और अमृत जल पिता को। So definitely it is a highest form of prayer that we can also offer before we put the food in our mouth. Okay, so आज की प्रैक्टिस में ये है that हमको पूरे दिन जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसको हमको बहुत सारा, और आज की प्रैक्टिस नहीं है, ये जिंदगी भर की प्रैक्टिस होती है। और इसमें रोंडा बर्न ने बोला है कि अगर आप भूल जाते हो, सपोज आपने एकदम से चाय पी ली
आपका कॉन्वर्जेशन चाय पीते वक्त दूसरों के साथ क्या हो रहा है ये भी मैटर करता है। वो एनर्जी चाय में जा रही है, बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी और कोई गॉसिपिंग करना, बिचिंग करना, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए खाते पीते वक्त, ठीक है। अब ऑफिस में कर रहे हैं तो 10 तरह की बातें होती है, लेकिन आप अपनी कॉफी को एनर्जाइज कर लो, जो आपका बेवरेज है, जो भी आप पी रहे हो, पानी वानी, आप अपने उसको एनर्जाइज करके पियो, ठीक है। पता नहीं उसमें कितने इमोशंस थे, हो सकता है कि जब वो पर्सन ला रहा हो पानी, आजकल वो ऑफिसेज में वो बड़े बड़े वो किनले के कैंटर्स आते हैं, 20 लीटर्स वाले जो जार्स, तो उसमें अब पता नहीं कि जो इंसान ला रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो कुछ कुछ बोल रहा था अपने मालिक के लिए, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स वहां पे चले गए थे वो वाले, तो आप उसको प्योरीफाई करके पी लेना। तो जैसे ही आप बोलोगे वैसे एनर्जी चेंज हो जाएगी, फिर उससे कोई मतलब नहीं है कि पीछे से किसी ने क्या बोला था, ठीक है। तो ये वाला। और सुबह वही हमारी प्रैक्टिस है, काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग मिनिमम हमको लिखनी है, उनको रीड करके 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, पूरे दिन अच्छे से तबीयत से करो, सोचो ये हुआ था, वाओ आज हवा कितनी अच्छी चल रही थी जब मैं वॉक कर रही थी, अमेजिंग, वाओ आज मैंने सनसेट देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, थैंक यू, वाओ आज मेरी राइड कितनी स्मूथ थी, मैं आ रही थी तो इतना इजी ट्रैफिक था, बड़ा मजा आया, या आज जब मैं कार चला रही थी तो मेरा फेवरेट सॉन्ग प्ले हो रहा था, पूरा गोइंग टू डिटेल ऑफ कैसा दिन गया, उसमें से बेस्ट चीज निकाल के थैंक यू बोल के सोना है। ये दोनों हमारा कंटिन्यू रहेगा। और आज का मैजिक प्रैक्टिस, और रॉन्डा बर्न कहती है अगर आप भूल जाते हो, सपोज आपने जल्दीबाजी में खा लिया, बहुत भूख लग रही थी, जल्दी जल्दी खा लिया, तो क्लोज योर आईज आफ्टर दैट, फिर दोबारा से रिवाइंड करो, गो बैक टू ईटिंग योर दाल राइस, ओके, और उस खाने में खूब सारा ग्रैटिट्यूड डालो, उसकी वजह से एक्चुअली you will see a huge difference happening in your life. So ये मैजिक इंग्रेडिएंट प्रैक्टिस है। मैं आपको वो स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ, मसारो इमोटो वाला, आप देखो ये वाला कितना अच्छा है, दिखा स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, हम आस्किंग Yes, यू। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें आप देखो, सबसे पहला आई लव यू है, अगर आपने आई लव यू बोला खाने को तो देखो क्या हो रहा है, थैंक यू, सॉरी थैंक यू वाला, सबसे पहले वाला जो ऊपर वाला है ये दिस वन, ये थैंक यू बोलते ही ये वाटर का शेप हो जाता है। विजडम, अगर आप विजडम एग्जिबिट करते हो, आई एम वाइज, या आप किसी को विजडम से ब्लेस करते हो तो ये होता है। ट्रुथ, सच बोल के ये होता है। इटर्नल का ये है, अगर आपने किसी को यू फूल बोला तो देखो कैसे गार्बल सा पानी हो जाता है, ऐसे कीचड़ जैसा लग रहा है, कलर भी बदल गया उसका। पीस से ये हो रहा है, आई लव यू से देखो कितना सुंदर होता है, इसीलिए आई लव यू तो जरूर बोलो, लव वर्ड आपकी जुबान पे हमेशा आना चाहिए हर चीज के लिए, ठीक है। उसके बाद ये एंजल बोला तो देखो, एंजल से देखो कैसा, मतलब जैसे वो टियारा होता है ना जो सिर पे पहनती है प्यारी प्यारी सी लड़कियां, वैसे टियारा बन गया है, ठीक है। और फिर अगर आपने किसी को बोला, मतलब सपोज घर में झगड़ा चल रहा है और आपने किसी को बोला यू रियली मेक मी फील सिक, यू आर अ सिक पर्सन, या आपने ऐसा कुछ बोला, तो देखो पानी कैसा हो गया, कीचड़ जैसा। फिर उसके बाद ईविल बोला तो देखो ये ईविल का होल, काला ब्लैक हो गया पानी, ठीक है। फिर पल्यूटेड वाटर बिफोर द प्रेयर, एंड बिफोर द प्रेयर ये पल्यूटेड वाटर है, गंदा गंदा नाले का पानी, और वही पानी जैसे ही आपने आई लव यू बोला उसके बाद देखो वही कीचड़ वाला पानी, ठीक है, वो कैसा हो गया। This is how, it's such a huge difference that happens in the food and water when we kind of really bless it. So we have to continue doing this practice every day, every moment. Even if you're taking one sip of water, that one sip of water जादू की तरह आपकी जिंदगी में difference ला सकता है. So yeah, let's go to the other book now. Ma'am, it's looking like a earring ka design. हाँ एक्चुअली कुछ इयररिंग्स हैं, कुछ टियारा जैसे लग रहे हैं, Yeah. कुछ कैसे, बट लाइक जैसे आई लव यू और वो सब बोल के ब्यूटीफुल शेप्स आ जाते हैं पानी में. सो दैट हमको Love the बचपन से way अभी you तक पता नहीं perceive, ना, हम Sarita लोग ji. सब न्यूज देखते देखते ही खाना खाते रहे शायद बहुत सालों से, है ना, कभी मूवीज देख के, कभी कुछ बातें करके
खाना खाते वक्त हम ये डिस्कस करते हैं कि उसने उसके साथ ये कर दिया, ऑफिस में उसने उसको ये बोल दिया, मेरा बॉस बहुत बेकार है, माय ओनर ऑफ द बिजनेस इज लाइक दैट, या मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, अभी तो मुझे खाना ही नहीं खाया जा रहा। अब खाना सामने प्लेट पे रखा हुआ है एंड वी आर सेइंग दैट मैं तो बिल्कुल जी नहीं कर रहा खाना खाने का, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एट ऑल, यू नो, आई एम नॉट फीलिंग, मुझे अंदर अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। सो यूनिवर्स सेज ओके हैव मोर, यू नो, वो भी हैव मोर हो जाएगा। तो इसीलिए बी वेरी वेरी केयरफुल, ऑल ऑफ अस, आई थिंक इट इज अ लर्निंग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट थॉट्स वी आर थिंकिंग एंड व्हाट वर्ड्स वी आर अटरिंग। आपके थॉट से पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है। आई लव यू तो कई बार मुंह से नहीं बोलते ना। नवदीप ने भी तो शेयर किया था अपने एक्सपीरियंस, कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड का थायराइड ठीक किया। इट वाज एंड उनके उनके बॉटल पे वो लिख के उनको पानी, मतलब बोल के उनको पानी देती थी कि मतलब, और इतना इतना क्लोजली अपने हस्बैंड को पानी देते हुए उसमें बोल के कि वो यू नो लाइक हर बोलते हैं तो फिर वो वाइब्रेशन आते हैं ना मुंह से। सो वो पानी हिलता था लाइक बोलने की वजह से, वो क्योंकि वो रिम तक भरा हुआ होता था, टिप तक, तो वो हिलता था, तो वो उनके परफेक्ट थायराइड के लिए करती थी। और उनका भी थायराइड कुछ 8 पॉइंट समथिंग से 3 या कुछ हो गया था। सो this is how water actually, even husband's thyroid, you know, in someone else's health you can actually transform with this, ठीक है। इसीलिए तो हम मंदिर वाले खाने को प्रसाद बोलते हैं। डिफरेंस क्या होता है, वहां पे भजन भजन चल रहे होते हैं, वहां गॉड के प्रेज में घंटी बजा बजा के, साउंड वाइब्रेशन भी होती है ना साथ साथ, तो मंदिर में भजन चल रहे हैं, गुरबानी चल रही है, यू नो। और जहाँ पे भी जैसे पानी पानी तो हो, मतलब सरोवर तो होता ही है गुरुद्वारों में, मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमको अपने पाम पे पंडित जी अमृत के तौर पे वो एक एक मतलब 1 स्पून वाटर वी गेट, नो, विच इज लाइक अमृत प्रसाद जिसको हम बोलते हैं। फिर जो नमाज जब पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स उनका बीच में वो वाटर वो होता है जिससे वो लेके अपने ऊपर वो डालते हैं। तो हर रिलीजन में पानी का बहुत महत्व होता है, और वो इसीलिए वहां का पानी क्यों प्रेशियस होता है मस्जिद का, बिकॉज लगातार जो नमाज जो अल्लाह के प्रेजेस में वो चल रहा होता है, उससे वो पानी प्योरीफाई हो जाता है तो वही नॉर्मल वाटर ना, लेकिन उसकी एनर्जी चेंज हो गई है। यही चीज मंदिर में भी तो वो नॉर्मल आरओ से ही पानी लेते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है मंदिर में रह के, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट यू नो लाइक वो भजन और वो जो चल रहे होते हैं, लॉर्ड के प्रेजेस में जो आरती होती है वो सब उसकी वाइब्रेशन जाती है, साउंड वाइब्रेशन जाती है। सो वही है कि हम भी तो अपने पानी को, अब सोचो कि हम 24 घंटे प्रसाद और अमृत ही खा रहे हैं और पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली हेल्थ तो बहुत अच्छी होगी। इतने लोगों ने अपना बॉडी वेट लूज किया है वाटर टेक्निक से और खाने की टेक्निक से। थैंक यू फॉर माई परफेक्ट बॉडी वेट ऑफ 52 kgs। आई वुड डू दैट ड्यूरिंग कोविड अलॉट, बिकॉज मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ था, ठीक है। सो उस तरह से, एंड आई वेंट बिलो 52 ऑल्सो, यू नो, लाइक इट वाज लाइक दैट। हाँ जी, सो रीना, Ma'am, there's a question. Like, ma'am, अगर ये question can be पानी, taken in the end. We'll okay, finish yeah, this book and then we'll yeah, take questions. Uh, We are so left with some 15 minutes or 5 minutes. I will have to end the session at 7:05 today. I would not be able to delay it too much, but yeah, exactly at 7 we end. हाँ जी रीना, please start reading. तुम्हें फाइन से पढ़ना है मैम। हाँ जी, ये हम गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप गोल कर रहे हो कि मुझे एक बहुत आलीशान घर खरीदना है जिसमें इतने सारे कमरे हैं, इस जगह, तो कभी कभी रेजिस्टेंस आ जाता है कि कैसे हो पाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, यू नो, कैसे, इतनी सैलरी है मेरी तो इतना इनकम आता है, इतनी ईएमआई है ना, ऐसे रेजिस्टेंस आते हैं, हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। हाँ जी। You may find that the very process of choosing goals brings up a certain amount of emotional resistance in you. You might experience this in various different ways, such as feeling depressed, hopeless, or overwhelmed at the thought of trying to set goals. Or you might feel the desire to distract yourself by eating, sleeping, or other activities. These emotional reactions, if you should have them, are clues to the ways in which you avoid getting what you want in life. It's important to go ahead and experience these feelings and reactions, to go through them and proceed with the process. Once you get into it, you will find it of value.
then again you may thoroughly enjoy the whole process and find it very expansive, fun, and enlightening. I hope so. Don't make the choosing of goals too complicated or significant. Start with simple, obvious things. Remember, you can always change and develop them as you go along. Exercises. Number 1, sit down with a pen and paper and write down the following categories: personal growth oblique education, work or career, relationships, creative self-expression, money, lifestyle oblique possessions, leisure oblique travel. Now, keeping in mind your present life situation, write down under each category some things that you would like to have, to change, or to improve upon in the near future. Don't think too hard about it. Simply write down any ideas that come to your mind as good possibilities. Then, the purpose of this exercise is to loosen you up and get you thinking about what you want in the various areas of your life. Number 2, take another piece of paper and write at the top: if I could be, do, and have everything I want, this would be my ideal scene. Now, list the same 7 categories and after each one, write a paragraph or 2, or however much you want, describing your absolute ideal situation in life as far as you can fantasize about it. So I hope हमको ये समझ में आया है जिस तरह से हम ये कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो अपने गोल को बहुत अच्छा, इजी, रियलिस्टिक बनाओ और ये सोचो कि उनके होने के बाद आपको कैसा लगेगा। ये मत सोचो वो आएंगे कैसे। ठीक है, ये भी यही समझा रहे हैं हमको, समझा रही हैं शक्ति गवैन की हाउ में मत जाओ बिल्कुल भी। जब ये हो जाएगा तो आपको कैसी फीलिंग आएगी उस बारे में बहुत ज्यादा सोचो, है ना। सो दिस इज व्हाट, तो इन्होंने हमको पूरी लिस्ट दी है कि इन लिस्ट में से देखो कि आपके इनमें इन एरियाज में से क्या क्या चीजें हैं जो आपको चाहिए इस वक्त। पर्सनल ग्रोथ या कितनी एजुकेशन चाहिए, सपोज आपको अपनी पीएचडी करनी है, आपको अपना मास्टर्स करनी है, आपको अपना ग्रेजुएशन किसी सर्टन उसमें करना है। वर्क या करियर के क्या गोल्स हैं आपके, कितना कमाना चाहते हो, कैसा सक्सेसफुल करियर चाहिए। रिलेशनशिप के क्या गोल्स हैं। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, सपोज आपकी कोई हॉबी है और आपको गिटार बजाने का बहुत मन करता है या गिटार के क्लासेस, तो आपको वो क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, जैसे मुझे बहुत स्ट्रांगली है और स्ट्रांग होता जा रहा है दैट आई वांट टू डू पार्ट टाइमर डीजेइंग बिकॉज आई लव म्यूजिक, आई अंडरस्टैंड म्यूजिक, आई लव द ट्रीटमेंट ऑफ म्यूजिक, so I want to do my course in DJ, so I keep talking and thinking more about it, but this I know I'll do mostly international sunburns as an hobby while I continue writing the books and being an educator. वो करियर कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। दैट, सो क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन वो है। मनी के आपके एग्जैक्टली कितने गोल है, क्या गोल है। लाइफस्टाइल या पोजेशन में, अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी करनी है और आपको बहुत ब्रांड्स की, सपोज आपको बहुत सनग्लासेस का शौक है एंड यू वांट ऑल द ब्रांड्स ऑफ सनग्लासेस, so you can actually like write that as a goal. Leisure या travel, fun activities, आपको क्या क्या पसंद है। जैसे सपोज आपको गोल है कि मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है, मुझे बंजी जंपिंग करनी है, या मुझे इन कंट्रीज में जाना है, तो उन सब की आप लिस्ट बना लो और उसके बारे में यही सोचो दैट दैट कितने आराम से वो पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। And just be a little easy about it. Don't be very frigid, because अगर पेन एंड पेपर से आपने लिख लिया है तो मतलब वो ऑलरेडी 50% डन हो जाता है। बिकॉज हमको पता है ना, कोई भी डील होती है किसी, मतलब अगर कोई बाइंग एंड सेलिंग, वो भी लिख के होती है, ऐसे नहीं होती है। मतलब कहते हैं ना, हम लिख के दो या लिख के साइन करो, तो इसका मतलब वो स्टैम्प एंड सील हो गई वो आपके लाइफ के लिए। सो दैट ऑफ कोर्स। और फिर लिखा हुआ है टेक अनदर पीस ऑफ पेपर और उसके ऊपर लिखो इफ आई कुड बी, डू एंड हैव एवरीथिंग आई वांट, दिस वुड बी माय आइडियल सीन।
और फिर एक पैराग्राफ लिखो कि कैसा लग रहा है अब आपको वो गोल अचीव हो गया, है ना। जैसे आपका फिटनेस गोल अचीव हो गया, फिटनेस गोल था आपका कि आई वांट अ वेरी टोन बॉडी एंड ये वाला वेट सपोज 60 kgs या 55 किलोज, सो अब ये हो गया। तो अब आपको लाइक अब वो आइडियल सीन में आप क्या फील कर रहे हो कि मैं जहां जाती हूँ लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स रिलेटिव मुझसे पूछते हैं दैट यू लुकिंग सो गुड, व्हाट हैव यू डन, मेरी स्किन पे इतना ग्लो है, और पहले से इतनी बेटर हो गई है और होती जा रही है, मेरे बाल इतने अच्छे दिखते हैं, जो भी कपड़े पहनती हूँ दे बिकम मी सो मच एंड दे लुक सो गुड ऑन मी, एंड इतने ग्रेस के साथ मैं अपने आप को कैरी करती हूँ, आई एम जस्ट लविंग माई बॉडी एंड माई हेल्थ, मेरे सारे मेडिकल पैरामीटर्स इतने अच्छे आए हैं, मेरा हीमोग्लोबिन ऐसा है, मेरा पूरे चेकअप में सारी रिपोर्ट्स इतनी नॉर्मल आई हैं, बहुत हेल्दी महसूस कर रही हूँ, ये पैराग्राफ आपने लिखा है ना। सो ये इसमें बोला हुआ है कि एंड फैंटेसाइज अबाउट इट, थिंक मोर अबाउट इट, फैंटेसाइज मतलब अपने डे ड्रीम करो कि वो अचीव हो गया आपका और आपको कितना कैसा फील हो रहा है, दिस इज व्हाट इट मीन्स। हाँ जी। The purpose of this exercise is to stretch and expand you beyond your present limits. So let your imagination take over and really let yourself have everything you could ever want. When you have finished this, add one more category: word situation oblique environment. Describe the kinds of changes you would like to see happen in the world in your lifetime. If you could have the power to change things, world peace, the end of poverty, people becoming conscious of one another and the earth, living in harmony with nature, school transformed into exciting learning centers, hospitals becoming true centers of healing, and so on. You can be as creative as you like with this category, and you may find that you have all kinds of interesting ideas you never thought of before. Now, reread the whole thing and meditate on it a while. Create a mental picture for yourself of a wonderful life in a beautiful world. लिखो और विजुअलाइज करो, लिखो और विजुअलाइज करो जो भी है। मतलब किसी का गोल ये भी हो सकता है कि इंडिया में बहुत हार्मनी हो, हमारी इकोनॉमी की हर जगह सराहना हो रही है, हमारा जीडीपी बहुत अच्छा होता जा रहा है, हम अपनी कंट्री से इतना सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, WHO भी इंडिया को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि इतने अच्छे से कंट्री मैनेज हो रही है और इतनी सुपर पावर है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है, ये भी गोल हो सकता है ना। बट हम लोग अपनी लाइफ से इतने ज्यादा कंज्यूम्ड हैं कि हम अपने लाइफ के बियॉन्ड कभी प्रे कर ही नहीं सकते और कर नहीं पाते हैं। कर सकते हैं, सॉरी आई टेक बैक माय वर्ड्स, हम कर सकते हैं बड़ी चीजों के बारे में सोचना कि हमारी कंट्री में सारे रिलीजन्स एक जैसे साथ में रहें, सब no matter what category of religion they come from, they live like brothers and sisters, बहुत हार्मनी हो, सब बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करें एक दूसरे को, सारे रिलीजन्स कल्चर्स को जानने की कोशिश करें। ये कर सकते हैं हम, लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि हम उन्हीं पचड़ों में पड़े हुए हैं कि हमारी डोमेस्टिक हेल्पर अच्छे से बर्तन साफ नहीं करती है, हमारे घर में ये इशू चल रहा है, उसने मुझे ऐसे बोल दिया। हम इन सब चीजों से बाहर ही नहीं निकलते हैं कभी, है ना। तो हमें अपने पचड़ों से बाहर निकलना पड़ेगा एंड 1000 मील की रेस दौड़नी पड़ेगी। When you run a 1000-mile race, 100 miles is within it. Okay, so that 100 miles is your multi-crore of money that you have. So if you're praying that मेरे savings account में 1 करोड़ रुपए आ जाए, as an example, वो आपके 100 माइल रोड का ये मतलब वो 1000 माइल रेस आप रन कर रहे हो ना, तो 100 माइल में आता है वो। तो इसीलिए जब मैग्नानिमस या बड़ी प्रेयर्स होती हैं जो like it is related to something much bigger, like अगर आप अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए प्रे कर रहे हो, जहां पे भी आप काम करते हो, सपोज आप अभी सर्व उसमें हो, लाइक यू आर इन अ जॉब एंड और किसी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के आप सदस्य हो, लाइक यू वर्किंग देयर एज एन एम्प्लॉय, तो आप अपनी
अपनी ग्रोथ के लिए हम बहुत आराम से प्रे कर लेते हैं ना, लेकिन आप अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए प्रे करो। रोज लिखो कि my company is growing in leaps and bounds, and the total sale is like thriving and flourishing, and we are always exceeding the goals that we have, या whatever जो भी ब्रेक इवन, सब हर कंपनी का ब्रेक इवन होता है कि इतना मिनिमम खर्चा प्लस थोड़ा प्रॉफिट, उसके ऊपर कमाना होता है उनको। सो जो भी ब्रेक इवन है उसको आप बहुत आराम से एक्सीड कर रहे हो हर महीने। तो अब जब कंपनी के लिए प्रे करोगे आप एज एन एम्प्लॉय, आप देखना कि आपके बैंक अकाउंट कितने भर जाएंगे, बिकॉज वो एनर्जी जो हायर एनर्जी होती है that takes care of all these छोटा मोटा things। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपका बॉडी वेट कम होने लग जाएगा, आपका बिजनेस चल पड़ेगा, आपका ये हो जाएगा, आपके घर में हार्मनी आ जाएगी, क्योंकि आपने सेल्फलेस प्रेयर की है अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो इसमें शक्ति गवैन ने पिछले पैराग्राफ में बताया है कि अगर आपको वर्ल्ड पीस चाहिए, उसके लिए आप प्रे कर रहे हो, तो like you can have those prayers also. So I have pretty many of those kind of prayers जो higher, it's beyond my life, but obviously मेरी जिंदगी से इतने दुनिया के लोगों के लिए प्रेयर जा रही है, तो इतने दुनिया के लोगों की वो एनर्जी भी तो मेरी जिंदगी में आएगी ना, बिना चाहे आएगी। मैंने मांगा थोड़ी है वो वाली एनर्जी। आई हैव नॉट आस्क्ड दैट माय लाइफ विल चेंज बिकॉज आई एम प्रेइंग फॉर दोज कंट्रीज एंड हार्मनी, व्हेनेवर ये जो इंडो गल्फ वॉर्स होते हैं, बहुत सिविल अनरेस्ट रहता है ना। इजराइल अभी पीछे जो हुआ था इराक ईरान में, और इसमें रशिया का वॉर हुआ था, तो कितना सिविल अनरेस्ट था कंट्रीज में। तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द न्यूज, चुपचाप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल निकाल के 21 बार लिखो that there is lot of peace and harmony between both the countries and everything is resolved amicably। अपना कंट्रीब्यूशन तो हम दे ही सकते हैं ना। आप देखना उसकी वजह से आपकी जिंदगी में कितना मॉन्यूमेंटल तरीके से बदलाव आएगा, जो भी एरिया आपका नहीं चल रहा है वहां पे। सो दैट इज हाउ आप मैग्नानिमस गोल्स भी रख सकते हो, वो भी रख सकते हो, बट ठीक है अभी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर वैसा वो बहुत आराम से नहीं हो रहा तो अपने लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पर्सनल गोल्स, एंड वी कैन गो अलोंग विद दिस। एंड वंस अब जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बढ़ेगी, वैसे वैसे हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में भी करना शुरू कर सकते हैं, है ना। फिर इसमें यही है कि वो गोल लिख के अब नाउ यू फील गुड अबाउट इट एंड मेडिटेट ऑन इट। मतलब कि वाओ, मेडिटेट मतलब विजुअलाइज करो, फोकस करके वो गोल पूरा हो गया और आपको कैसी फीलिंग आ रही है, मजेदार, यू आर सो हैप्पी, मेरी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई, ये हो गया, ऑल दैट व्हाटएवर। सपोज आपको घर खरीदना गोल था, अब आप सोचो कितने मजे से आप उस फैमिली, अपनी फैमिली के साथ वहां रह रहे हो, गेस्ट आ रहे हैं, सब आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, उनका हैंडशेक फील करो विजुअलाइजेशन में कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं और कह रहे हैं वाओ आपके बाथरूम का कलर कितना सुंदर है, ये टाइल्स और बहुत अच्छी लग रही हैं, एंड देन आपके बालकनी से व्यू बहुत अच्छा है, तो दे आर एडमायरिंग दैट। ऐसे विजुअलाइज करना होता है। मेडिटेशन का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, फोकस्ड ऑन समथिंग। व्हेन यू फोकस ऑन वन थिंग, दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। और इसमें यही है दैट फिर उसके बाद जब मेडिटेट कर लिया, सो इसमें नाउ रीड द होल थिंग एंड देन मेडिटेट ऑन इट फॉर अ व्हाइल। क्रिएट अ मेंटल पिक्चर ऑफ योरसेल्फ ऑफ अ वंडरफुल लाइफ इन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। दैट्स व्हाट इट सेज। ओके, सो अगर टाइम तो हो गया है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे पॉइंट नंबर 3 से। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू रीना, थैंक यू फॉर Thank you, रीडिंग ma'am. दिस। Thank Thank you. you. हाँ जी, जिनको Yeah, पूछना ma'am. था प्लीज पूछिए। Yeah, ma'am, my question is Neeti. My question was like, if you're carrying a bottle, normally I do, but it is charged at home. But sometimes when you're out, and again, there's so many other talks going on. So now, what kind of energy that water again will get into? Yeah, it would have changed by now. So this you have to do just before putting it into the mouth again. It's all, if you're carrying that energy with you, or if people are talking, things which are not desirable, and that your water's energy would have changed. So you have to, just before drinking, you can just take your bottle and say, I'll just come back, or go out of that room or something, or, like when you're drinking it, just charge it. Just before consumption, you need to charge it.
So Okay. usko aap, even if it is not for 10 seconds, you know, because that will look awkward because all bhi Yeah. log hote hain. So you can just, even if you just say in your mind, I really love you, water, you know, I love you and please bless me with the best life. Itna to microsecond bhi nahi lagta sochne mein. Right. You Okay. look, but observer effect, huh? It would not be while talking to them that you are giving that thought to water. It has to be observer. You have to look with both your eyes into the water and then you have to give this thought. Thank you so much. I love you and thank you for always blessing me. बस उसके बाद पी लो, उसकी एनर्जी वैसे भी instant change होती है. कहते हैं ना blessings में वैसे time space नहीं होता, but for all the molecules to get rearranged 10 seconds minimum लगते हैं according to the research scientists. All right. Thank you. And for for your husband's any problem, like could be asthma or rhinitis, what do I pray? Like, thank you for healing. Yeah, I I mean, mean, like when you give water to him or chai, coffee or doodh or lassi Yeah. or whatever it is, like a fresh Mm. juice or some green juice, whatever it is that you're giving to your anyone in the family, to the family member, it's coming from the kitchen, the cook has just given it, but then, you know, try and take it yourself. And because agar wo believe karte hain isme to unko samjha do, if doesn't believe, then you have to do it. And just tell that water, thank you for, you know, unka naam leke, the water will remember the name of the person also. So unka naam leke, that thank you for his perfect health and a very quick healing and recovery. And now you give that to him. Okay. Ma'am, Yeah. I say that's a good thing. What I've started, the chanting in the kitchen. There is this Amazon page available. I mean, I on it in the kitchen, and like whenever the cook is cooking, that Yeah. chanting is on. So That's what I think, sometimes I also do when my Bharti is, sometimes she's in a very cribbing mode और वो खाना बना रही होती है सबके yeah, लिए, that is तो मुझे ही लगता है what is she doing? I immediately go and tell, अच्छा भारती और बताओ उस दिन तुम शनि मंदिर गई थी, क्या हुआ था? You know, like immediately I change the conversation because I have to change that energy. मैं कभी उसको, अगर उसका मूड खराब होता है तो ऐसे that भारती तुम बहुत जोर because she laughs a lot, so I say either you're laughing or you're not cooking. मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है that whenever you're in a foul mood or whenever you're talking all this thing, you're not entering the kitchen. So she knows now. तो एक दिन ऐसे कुछ cribbing, I mean, like she's the head, so there are other people, staff also who are working in the house, you know. So उनसे भी कुछ बात कर रही होती है. Then I always say that I went and I just put the music. मैंने कहा भारती तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? उस पे मैंने कोई बहुत मजेदार सा फन वाला सॉन्ग लगा दिया. And I kept in the kitchen. I said भारती वाला गाना सुनो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुमको भी बहुत अच्छा लगेगा. So you know, in my own little way, I you know, kind of have explained this to the person who's cooking the food in the house. It's mostly her. And so that energy needs to, so it's a good idea. I also do that. I put some nice music, you know, like happy music when the food is being cooked. Or of course subah ka time hai, so we can put all hamare jo, you know, sare devotional songs hote hain. So we can also put that because that's also devotion and praise of God. So we can do that as well. या गुरबानी लगा दो, Thank एक you. ओमकारा लगा सकते हैं घर में, Yeah. चलता रहेगा, है ना, something like that. Yeah. मैम मेरी कुसुम तो अपने आप ही चला लेती है भजन, सुबह सुबह आती अपने है आप चला लेती है. अपने फोन से अपने आप चला के मजे से हाँ. गाना बनाती है. बहुत ही हाँ. फन है. That's also good, yeah. Yes, And ये लोग बहुत समझते हैं, like you know, whenever, जैसे भारती को तुमने बहुत अच्छे से समझाया है. मैंने कहा जब तुम क्रिबिंग मोड में होती हो या ग्रम्पी, तो उस वक्त हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा, फिर आपकी भी तो हेल्थ खराब हो गई. तो बहुत अच्छे से उसको लॉजिकली समझाया हुआ है और वो बहुत जल्दी समझती है. So that way, but then we can change the energy for sure. Thank you so much. Yeah, thank you so much. So anyone, so we'll just log out for today. Need to kind of I have a some time. question. Can I ask? Yeah, sure, Ritu. Yeah, so this is one affirmation that I think you had said, negative thoughts and negative people are way away from my life. So should we be No, this is using not this a word good negative? affirmation. No. I mean, like universe doesn't understand should not be and should be. But Hanji. what you will attract is negative situation and negative people, because that is the highlight of the sentence. आपने बोला negative people and negative situation should not come to my life. Yeah.
are way Yeah, away no, from no, my no, life. that's a wrong affirmation. I attract only happy and positive people. आपको Okay. करना पड़ेगा. Yeah. Okay, okay. Thank you. Thank you so much. All right. Bye-bye. Thanks a lot, See you all ma'am. tomorrow. Have Have a a good day. beautiful day and remember magic ingredients. Okay. Go and have a nice glass of water and put all your intentions for the day into it. Thank Thank you. you. Thank you so much, Thank ma'am. you, Have a nice ma'am. day. Right. Thank you, Bye-bye. Bye, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.